ये भी क्वेश्चन किसने किया था कि स्लाइड 42 वाली जो डायग्राम समझ नहीं आई? मैम मैं गनवा। जी गनवा, आपने ये इसको देखा था, इसमें समझ क्या चीज़ नहीं आई आपको? कल आपने अटेंड की थी क्लास? मैम ये यस मैम मैंने अटेंड की है मैम। ये जो फर्स्ट और लास्ट फोटो बनाई हुई है डीएनए कंटेनिंग पॉजिटिव सुपर कॉइल और डीएनए कंटेनिंग वन नेगेटिव सुपर कॉइल, और बीच में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसकी समझ नहीं आई। देखिए इसमें आपको ना गायरेज एंजाइम के सब यूनिट्स शो किए हुए हैं, ए और बी ना, और उसके बाद ये शो किया हुआ है कि आपको पता है गायरेज क्या करता है, क्या फंक्शन है गायरेज का? टोपोआइसोमेरेज 2 जो है, क्या फंक्शन यस होता है? मैम मैम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, जो भी सुपर कॉइल के अंदर कंस्ट्रेन है उसको रिलीज करता है और बॉन्ड को फिर दोबारा फॉर्म करता है। जी, तो इस फिगर के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है। जो पॉजिटिव सुपर कॉइल है वो पहले क्या कर रहा है कि दो जगहों से इसको ब्रेक कर रहा है डीएनए को, और उसके बाद फिर जो है ना ब्रेक करने के बाद उसकी डायरेक्शन ठीक कर रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और एटीपी जो है इसको चाहिए होती है इस प्रोसेस में, क्योंकि इसने पूरा उसको रोटेट करना होता है, और फिर इस तरह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है ना। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। जी यसाया, आपने क्या पूछना था? अच्छा चलिए जी, आप लोगों को शेयर हो रही है प्रेजेंटेशन। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डीएनए का जो रिक्वायरमेंट्स है, रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो फीचर्स हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के वो क्या क्या हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें, ठीक है। और फिर डिफरेंसेस हमें देखे थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे। So actually, all the molecular process, they have three main phases: initiation, elongation, and termination. So similarly, DNA replication process is also occurring in sequential manner, right? So first of all, the initiation process takes place, and what happens in that process is the actually recognition of the starting point or origin of replication is the main, we can say, the theme, and then separation of double-stranded DNA and primer synthesis. So these four major functions are taking place in the initiation phase. Then during the elongation phase, addition of DNTPs to the existing strand and the formation of phosphodiester bonds and the correction of mismatched bases and extending the DNA strand. All these processes take place in the elongation phase. Then in the termination, replication process actually gets stopped. So let's see what is the situation in prokaryotes. So for initiation, in genome of E. coli or prokaryotes, the replication starts at a particular point. We call it as origin, right? So the origin of E. coli is called as ODC, and that is at the location of 82 at the genome. And the structure of origin is actually 248 base pair long sequence, and it's 80 rich in nature. Okay, so let's see in the genome of E. coli. You can see here that at 82 position, the ODC is written here, right? And on the exactly a kind of opposite side, you can see here TER, TER, right? So TER is the termination sequence. So the OD sequence resides here around 82 the position of the genome, okay? And you can see on the rest of the genome, the position of different genes of replication process are also indicated. Okay, the structure of ODC for E. coli is actually a kind of 313 base pair consensus sequences. So you can see in the figure, in the top, you can see three pairs of sequences which are actually consensus sequence. So as I told you earlier, maybe that consensus sequence is a kind of sequence that shows similarity with each other, right? So the three top pairs of sequences, they are showing similarity, not 100% similarity, but a kind of
मतलब 50% or 60% similarity with each other. And then at the lower, you can see two pairs of anti-consensus repeats. So it means that you can see the from 58 to 66, from 166 to 174, 201 to 209, and 240 to 248. All these sequences, they are actually not similar to each other. They are different. But this is the whole sequence of ODC of the E. coli. So how the formation of a pre-primosome takes place? You can see here the genome of the E. coli, negatively supercoiled template, and a very short sequence is zoomed out, and you can see 13 mer sequences and 9 mer sequences as shown in brown and yellow colors, right? And then you can see that DNA A protein that actually recognizes these ODC, actually it comes and it binds the DNA. Okay, and actually it also needs the help of ATP, and then it has to open the complex. The helicase enzyme actually is needed to open the DNA and double-stranded DNA, and then you can see different other proteins like DNA-C and DNA-B is actually helicase, and DNA-C actually is a kind of helicase loader, right? It loads helicase onto the DNA. So once the loading process of helicase takes place onto the DNA, then this DNA-C protein actually is released from the pre-primosome complex. Okay. So all the steps are mentioned on this slide 7. You can see that DNA A protein, when it recognizes the origin, it replaces, okay? And then single-stranded binding proteins, they also bind DNA to stabilize the single-stranded DNA and to keep it in single-stranded form. Then is the process of primer synthesis. We know that primase enzyme, it joins and forms a complex called primosome complex. It starts synthesis of primers onto the single-stranded DNA template using NTPs at the substrate in the 5 to 3 direction at the expense of ATP. The short RNA fragments provide free 3' OH groups for DNA elongation. So in the figure, you can also again see the whole process of phosphodiester bond formation. You can see that at the lower end, 3', indicating the 3' end is a template and 5' end is the primer end. And then you can see the 3' is shown in red, and the 3' OH is actually attacking the alpha phosphate of the incoming DNTP. And then you can see the release of inorganic phosphate because the bond of O and P is broken here after the phosphodiester bond formation. So primosome complex, you can see here the involvement of proteins, DNA A, then DNA B, and topoisomerases, and the primase is also shown here. So next step is actually the elongation step. We know that DNTPs are continuously connected to the primer or to the nascent DNA chain by DNA polymerase 3. Okay, the core enzymes alpha, eta, and theta, they catalyze the synthesis of leading and lagging strands. Okay. The nature of the chain elongation is actually formation of phosphodiester bonds. And actually, I have mentioned this video link for video here, and I request all of you to please watch this video to make your concepts more clear. Okay, so here you can see in this figure the leading strand at the top and the lagging strand at the lower side, and in between you can see all the enzymes which are actually helping the process of replication. So you can see the double-stranded DNA, and then you can see the primase in green color, and single-stranded binding proteins, and then RNA primer on the lagging strand, and the leading strand is actually synthesized continuously, while you can see the lagging strand and a loop structure you can be seen in the lagging strand, so that its direction is actually corrected in this way. Okay, so in this figure again you can see the phenomena of loop formation in the lagging strand, right? And the synthesis direction of the leading strand is same as that of the replication fork. The synthesis direction of the latest Okazaki fragment is also same as that of the replication fork. Okay, and here's again a link for a video. You should be actually watching this video.
Again, in this figure, you can see more clearly all the enzymes, right? Names are also written, and you can clearly see here that replication process is actually kept to run simultaneously, okay? And you can see the topoisomerases, which are actually uh, just uh, ahead of the whole replication system. So you already know that lagging strand synthesis, actually the primers on Okazaki fragments are digested by RNAs. RNases are the enzyme which can actually work on the hybrid DNA RNA hybrid, right? So because in case of replication, the primer is of RNA, and DNA is deoxynucleotides, while RNA is oxynucleotide triphosphates. So the gaps are filled by DNA polymerase 1 in 5 to 3 direction, and the nick between the 5' end of one fragment and 3' end of the next fragment is sealed by ligase. So here in the figure, you can again see the whole process. The pink color are the primers, and they are removed, and then the nicks are actually joined by the ligase enzyme. Okay, so then comes the termination process, okay? The replication of E. coli is bidirectional from one origin, and two replication forks, they must meet at one point called the TER at 32 base pair of on the genome. So all the primers will be removed and all the fragments will be connected by DNA polymerase 1 and ligase. So the process of termination in case of prokaryotes uh, is actually very different because their genomes are actually circular, okay, if we are talking about plasmids or if we talk about the genome, chromosomal genome. So but the process of replication termination in case of eukaryotes is quite different because eukaryotic chromosomes are linear, and we are having a very different, you can say, chemistry at the lagging strand due to the loop formation after every few hundred base pairs. So replication of eukaryotes, let's say, because we just have covered the replication of prokaryotes, and now you could be well aware of different sequential events. So let's now talk about eukaryotes, how replication is taking place in eukaryotes. योगी मैम जी मैम तो लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन जो है रेप्लिकेशन फॉर्क जो है टर्मिनेशन एट 32, तो मैम ये 32 का क्या मतलब हुआ? आपको मैंने जीनोम शो किया है ना, जो इसका 32 पोजीशन है उसकी जीनोम पे। ओके अगर आप चार्ट में वो जो सर्कुलर पूरा उसका शो किया है, ये आपको दिखाती हूँ दोबारा स्लाइड 4 पे। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जीनोम की ना इन्होंने शो की हुई है कि बेस पेयर्स के रेफरेंस से ना यहाँ पे अगर चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो उसमें इन्होंने जस्ट इसकी पोजीशन शो की हुई है, और ये 32 पोजीशन के ऊपर ये शो किया हुआ टर्मिनेशन है, और 80 पोजीशन के ऊपर 82 पे आपके पास जो है वो है ओडीसी है, ठीक है। एक्चुअली ये जो इसका जीनोम यहाँ शो किया हुआ, ये स्केल पे नहीं शो किया हुआ, यानी असल में तो ई. कोलाई का जीनोम काफ़ी लार्ज है, ठीक है। और उसको अगर आप उसके ओरिजिनल स्केल पे देखते हैं तो फिर उस पे भी ख़ास पोजीशंस हैं जहाँ पर आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, एग्जिस्ट करता है, और टर्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो आपके पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस आता है वो यही है कि प्रोकैरियोट्स में आपके पास सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। उनका जीनोम शॉर्ट है, फिर वो सर्कुलर है, तो एक ख़ास पॉइंट है और वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं वो नोन हैं, वो डिफाइंड हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं मिलता कि जिसे हम कहें कि ये सीक्वेंस जो है ना, अगर हमें पता चल जाए कि ये सीक्वेंस है तो ये हर दफ़ा हर क्रोमोसोम के ऊपर अगर हम मैप करते हैं तो पता नहीं चल सकता हमें कि ये जो है इनका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ये बहुत वेल डिफाइंड है, क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आपको मैं जो थर्ड पार्ट है रेप्लिकेशन का उसमें डिटेल में बताऊंगी कि यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास एक सिंगल सीक्वेंस जो है ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो लेट्स सी कि रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स कैसे है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद सेल साइकिल। You all know that in which phase this replication process takes place? It's S phase, okay?
So multiple origins on one chromosome are actually existing, and replications are activated in a sequential rather than simultaneous manner. ठीक है, simultaneously जो है वो नहीं हो रही बल्कि sequential order में हो रही है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो S phase है सेल साइकिल की, ठीक है, उसमें रेप्लिकेशन हो रही है. और अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि 24 आवर्स का है सेल साइकिल, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स जो हैं वो डीएनए सिंथेसिस को चाहिए एक 24 आवर्स के सेल साइकिल के रेफरेंस से. ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखते हैं तो जितने भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पोटेंशियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एग्जिस्ट करते हैं क्रोमोसोम्स पे, वो सारे के सारे इकट्ठे एक्टिवेट नहीं होते. ठीक है, हम जब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे थे तो हमें देखा था कि हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन के अंदर आपके पास डिफरेंस यही आता है कि जो यूक्रोमैटिन है वो रेप्लिकेट पहले होता है, ठीक है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो लेट रेप्लिकेट होता है. तो इस वजह से हमारे पास सीक्वेंशियल एक बनता है ऑर्डर इसमें. ठीक है, so initiation in case of eukaryotes, we are having the eukaryotic origins are actually shorter than the E. coli, and it require DNA polymerase alpha, primase activity, polymerase sigma, polymerase activity, and helicase activity, and it needs topoisomerases and replication factors to assist. So elongation, actually DNA replication and nucleosome assembly, they occur simultaneously, and overall replication speed is compatible with that of prokaryotes. Actually हमने जो initiation और elongation के जो processes हैं, हमारा जो paper है breaking up is hard to do, उसके अंदर cover करने हैं. ठीक है, replication process में आपने जो paper cover करना है course में, उसमें बहुत सारी details हम पढ़ेंगे, इसलिए इस presentation में सिर्फ आपका जो background knowledge था उसको refresh करने के लिए कुछ चीज़ें add की थी मैंने. ठीक हो गया, तो उसको हम detail में जो है वहाँ पढ़ेंगे. Now let's see the process of termination in case of eukaryotes. We know that chromosomes are actually linear structures, and we see that one of the strand of DNA is actually leading strand and other strand is lagging strand. Leading strand is synthesized continuously and lagging strand actually is synthesized in fragments. Okay, so the connection of discontinuous segments is important factor at the termination. Okay, so when the whole chromosomes are replicated and the replication machinery reaches at termination at the telomere regions, which are the ends of the chromosomes, then what is happening actually? Okay, so telomeres actually they are terminal structures of eukaryotic DNA of chromosomes. Okay, telomeres. The telomere is composed of terminal DNA sequences and proteins. The sequence of typical telomere is rich in T and G. The telomere structure is crucial to keep the termini of the chromosomes in the cell from becoming entangled and sticking to each other. So actually the system, the replication machinery and other protecting proteins, they actually protect the telomeres so that they cannot be entangled within the nucleus, and they are also actually stopped to interact with other, neighboring DNA. Because if they are having sticky ends, whenever DNA is having sticky ends, sticky end means that one fragment in the double-stranded DNA, one fragment is elongated and other is shorter, right? And the elongated one is single-stranded. So that is the sticky end. So if at the ends of chromosome we are having these sticky ends, then they can pose a problem. They can become entangled. They can make interaction with other neighboring chromosomes. So actually this is protected. Okay. So how the ends of the telomeres or chromosomes, they are actually replicated. They need the enzyme telomerase. Okay. So eukaryotic cells actually use telomerase to maintain the integrity of DNA telomere. The telomerase enzyme actually is composed of telomerase RNA, telomerase associated proteins, and telomerase reverse transcriptase activity. It is able to synthesize DNA using RNA as a template because it carries its own RNA. So that RNA is being used as template and DNA is actually extended. So let's see, if you just see at this figure, the blue color is DNA, okay, and the red color is shown for RNA template that is part of the telomerase. Okay, so
Let me show you this animation so that you can understand. Actually, I have mentioned two videos here in the previous slides. You should watch the videos, and the process of telomerase replication will be telomere replication will be quite clear. Okay, but if you just look at this animation, so replication of lagging strand of a linear chromosome encounters a problem at the 3' end. Okay, you can see the top strand and the bottom strand. Okay, actually they are showing the enzyme in opposite direction, but in reality it is not the same. Because of the loop formation, the overall direction is kept same. Okay, but just to see to get the main idea that synthesis by the polymerase on the leading strand actually is complete, but on the lagging strand we get a gap. Okay, because after every few base pairs we have to make a loop, but when it reaches to the end, the loop is not formed. And eventually what is the situation when all the primers they are actually removed? The gap is actually left at the lagging strand. Okay, in one of the strands of the lagging strand. So you can see telomere will come and it will be using its own RNA as a template. So by using that RNA, it can show some of the complementarity with the template strand of DNA, and by making bonds with that, it will be extending the one strand of the DNA, and in this way the short end of the DNA is elongated, and now the loop formation can take place, and next the new primer can be attached, and the end of the chromosome can be actually replicated. So by when this the actually telomerase enzyme is using its own RNA, so it's creating lots of short TG rich repeats. So when the quite large part of lagging strand is synthesized, then the polymerase alpha will come and it will be replicating the lagging strand in the same manner as it replicates the middle of the chromosome. Okay, so you can also watch this animation and you can get a better idea. Is it clear? If anybody has question. टीपी जो हमें चाहिए होते हैं रेप्लिकेशन स्टेप में जनरेट में वो कहाँ से होते हैं? एक्चुअली आप ये देखिए कि जो सेल है उसमें पूल होता है एटीपी का, ठीक है। एटीपी जो है ना हमारे सेल में आप इसे कह सकते हैं कि एनर्जी करेंसी इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वो तो आपके पास सेल में जिस जिस भी प्रोसेस में चाहिए होती है तो सेल उसका पूरा एक पूल मेंटेन करता है, ठीक है। यानी कि मैम कोई स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेकेज नहीं चाहिए एटीपी की जनरेशन के लिए यहाँ पे। मैं समझी नहीं आपका पॉइंट। मैम ये कह रही थी कि जैसे कि एक बॉन्ड ब्रेकेज के बाद एटीपी रिलीज होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए हमें, मतलब हम पूल से यूज करेंगे एटीपीज यहाँ पे। जो इनिशियल स्टेप है उसकी बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे जी मैम वही। क्योंकि एक तो ये कि जब डीएनए सी प्रोटीन डीएनए ए की हेल्प करती है उस टाइम पे उसको एटीपी चाहिए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट है क्योंकि वो इनिशिएशन फेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन ये कि जब आपके पास इसने हेलिकेज ने ओपन अप करना है, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है फिर। और कोई क्वेश्चन है? आपको टेलोमेरेज की रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझ आ गया? आप लोग वीडियोस देखेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियोस जरूर वॉच करें ताकि आपको क्लियर।
मैम आपका माइक ऑफ है। जी मैम जी आपका माइक ऑफ है। जी, मैं बोल नहीं रही थी इसीलिए ऑफ की। तो हम इसका देख रहे थे टीलोमरेज का और टीलोमेर रेप्लिकेशन का, ठीक है। टीलोमरेज जो एंजाइम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कैंसर बायोलॉजी के अंदर और सेल एजिंग में, ठीक है। हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जी स्लाइड शो नहीं हो रही? हेलो, स्लाइड शो नहीं हो रही? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब हो रही है। जी जी, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा जरा। ओके, सो अब आप इस फिगर को देखें, अगर जो आपको स्लाइड 29 में नज़र आ रही है, तो इसमें आप देखें कि जो एंड है बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास बहुत सारी प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही है, शेल्टरिन प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के एंड्स पे जब एक्सटेंशन हो जाती है, टीलोमेरेज एंजाइम जो रेप्लिकेट कर लेता है उसको, ठीक है, तो जो पूरा लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि उस एंड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एंड्स जो हैं क्रोमोसोम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर क्रोमोसोम के एंड्स जो हैं उसमें ट्रिमिंग शुरू हो जाती है, अगर वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो उससे ये हो सकता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता से ट्रिम होता होता जो जीनोम के क्रोमोसोम का जो एंड है वो ट्रिम करते करते सेंटर तक पहुंच जाए और इम्पोर्टेंट जीन्स जो हैं वो उनकी हम लूज कर सकते हैं उनको ना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये शेल्टरिंग प्रोटीन्स हैं, पूरा ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, ये जो है पर्टिकुलरली उसको शील्ड करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये जो है ना पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें टीटीए जीजीजी रिपीट्स होते हैं उनको बाइंड करती हैं, और कहीं पे अगर ओवरहैंग भी रह जाता है, ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इन्हीं फैमिली की पॉट वन प्रोटीन है जो कि बाइंड कर रही होती है, ठीक है ना। और एक एक्चुअली शेल्टरिंग प्रोटीन्स एक्चुअली अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टीलोमेयर्स फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड breaks, and lack of sheltering allows telomeres to be identified as double-stranded DNA breaks and triggers DNA damage pathway 9, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर इन प्रोटीन्स ने डीएनए का जो एंड है, ठीक है, उसको कैप्चर नहीं किया हुआ, तो आप देखें कि टीलोमेरेज एंजाइम उसको एक्सटेंड तो कर देता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे चांस हो सकता है कि कोई ना कोई ब्रेक रह जाए, जैसे कोई ना कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो प्रॉपरली सील नहीं हो सका। तो अगर वो अनप्रोटेक्टेड हो तो डेफिनेटली डीएन जो जीनोम जो सेल है वो ये समझेगा कि ये यहाँ पे ब्रेक है, और हमें जीनोम को देखिए, जब भी इस चीज़ को ज़हन में रखें कि डीएनए के अंदर ब्रेक्स आना जो है ना वो एक तरह का एक सिग्नल है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो उसके लिए क्या होता है कि रिपेयर पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, लेकिन अगर रिपेयर पाथवे जो है उसको रिपेयर कर दे, एक ऑप्शन वो है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये भी हो सकता है कि सिस्टम ये समझे या सेल ये समझे कि अब जो है ना प्रॉब्लम आ गया कोई, तो लेट्स डू सुसाइड, ठीक है। जो प्रोग्राम सेल डेथ्स होती हैं या फिर ये जो इपा प्रोसेस के जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जीनोम जो है ना उसकी फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है और वो सेल खुद से ट्रिगर करता है वो प्रोसेस। तो जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं, अगर इनकी रेप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी और उसमें ये जो शेल्टरिन प्रोटीन्स हैं इन्होंने इनको कवर नहीं किया होगा, तो जो आपके रिपेयर पाथवे वो एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर डीएनए डैमेज पाथवेज वो एक्टिवेट हो सकते हैं कि वो डीएनए को सारा डैमेज करना शुरू कर दें और वो समझे कि ये देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इस वजह से इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है, और जो ओवरऑल एंड्स हैं क्रोमोसोम के टीलोमेर्स जो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन सारी प्रोटीन से। तो अच्छा, अब रेप्लिकेशन के और भी मोड्स हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द
वेरी फेमस दीज डेज कोरोना की वजह से भी जो है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर ऑफ सम बायोलॉजिकल सिस्टम इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे कि आरएनए डीएनए, जैसे कि आरएनए वायरसेस हैं ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। तो information flow is from RNA to DNA opposite to the normal process, ठीक हो गया। and the special replication mode is called reverse transcription। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि अब जाहिर है कि वायरस ने रेप्लिकेट भी करना है, वो सारा प्रोसेस करना है, तो उसके लिए वो आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर वो अपनी कॉपीज जो है वो सिंथेसिस करेगा उसको। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज यूज्ड एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस मैम जो है वो जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम जी वो जो आप बता रही थी टेलोमेरेज एंजाइम का, तो जी जी उसमें ये है कि सेल एजिंग से वो रिलेटेड है, तो वो किस जी तरह जी से होता है, थोड़ा सा आप जी ये बताएंगे? यानी हाँ, कि सेल जो सेल एंड्स हैं। है जी जी जी। उसमें ये कि हमारे जो जी देखिए मैम। जो सोमैटिक सेल्स हैं जी सारे बॉडी के, उन सब सेल्स की एक खास एज है कि आफ्टर सर्टेन सेल डिविजन्स उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर रिप्लेस हो जानी चाहिए वो, या फिर उनकी सेल डिवीजन हो जाए, या फिर वो डेथ ही हो जाए उनकी ना, ठीक है। तो जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस जाता है तो टीलोमेरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, ये सेल्स में कम हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं उसमें इसकी एक्टिविटी इंक्रीज मिली है साइंटिस्ट को, और उसका क्योंकि इंक्रीज इसीलिए कि जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टीलोमर्स को भी जाहिर है कि रेप्लिकेट करना है। लेकिन देखें ना, स्किन सेल है या फिर नहीं, आपका जो लिवर सेल है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें खुदा ना खास्ता कैंसर होता है तो नॉर्मल जो लिवर सेल है उसने अगर साल बाद डिवाइड करना था तो उसमें तो ऑटोमेटिकली टीलोमेरेज एंजाइम की जो एक्सप्रेशन है वो कम होगी। लेकिन जब वो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी उसमें, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली एंड्स को भी रेप्लिकेट करना है, ठीक है। लेकिन अब एजिंग में देखते हैं तो एजिंग में इसका जो टीलोमेरेज का जो है ना एक्सप्रेशन, वो कम हो जाता है जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आते यस। हैं। उसमें ये भी लोग कहते हैं कि जब स्ट्रेस हम लेते हैं तो स्ट्रेस जो है वो टीलोमेरेज को स्लो डाउन कर देता है, उससे भी एजिंग का प्रोसेस होता है। और इसी तरह से आपको अगर कोई बाकी की कोई रेगुलेशन अगर उसमें गड़बड़ हो जाती है, टीलोमेरेज जीन की एक्सप्रेशन की जो रेगुलेशन है, ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म में, तो उससे भी एजिंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है फिर, ठीक है। तो उसमें उसमें ट्रिगर होने का पर्पस यही है कि सेल जो है ना, जब टीलोमेरेज प्रॉपर्ली रेप्लिकेशन नहीं करेगा क्रोमोसोम्स के एंड्स की, तो आहिस्ता आहिस्ता से ट्रिम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम इधर कोई माइक मीटिंग माइक म्यूट कर दें। क्या कह रहे हैं? मैम समझ आ गई है। ठीक हो गया। वो और जब जीन लॉस शुरू हो यस। जाएगा ना तो फिर आप माइक म्यूट कर लेना, मेरी आवाज डबल हो जाती है फिर। आप क्वेश्चन करके माइक अपने म्यूट कर लिया करें फौरन से। जी मैम। मैम ये बार बार कोई मीटिंग से रिमूव कर रहा है। दिस इज द फोर्थ टाइम somebody is removing me from the meeting. I don't know why. जी, ये क्यों कोई तूबा को मीटिंग से बाहर कर रहा है? प्लीज आप किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी से जो है ना वो में ना हो। मैम तूबा का इंटरनेट इशू होगा, मीटिंग से कोई भी रिमूव नहीं कर सकता किसी को। यार मेरा कोई हाँ, इंटरनेट क्योंकि उसमें नहीं, वो समटाइम आपको पता नहीं चलता ना, असल में आपका इंटरनेट जो है वो डायरेक्टली आपको इस तरह नहीं नजर आ सकता ना, लेकिन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यस मैम, मेरा भी कभी इंटरनेट होता है इशू तो वो खुद ब खुद मीटिंग रिमूव हो जाती है। एनीवेज अगर कोई खैर और तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैंने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी ऑप्शन नहीं रखी हुई कि कोई और कर सके, आपको निकाल सके, तो वो हो सकता है समटाइम प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम के जो एंड्स अगर ट्रिम होना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट जीन्स जो है ना उनका लॉस हो सकता है, और उसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली सेल्स की डेथ हो सकती है, और फिर एजिंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है, ठीक है।
इसमें खास तौर पे स्ट्रेस के Yes, हवाले से ma'am. कुछ मैंने देखी थी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो एक दो साल पहले, जिसमें क्या कहते हैं कि आप जब स्ट्रेस लेते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं लोग खास तौर पे, तो इन सब का जो है ना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है टीलोमेरेज के ऊपर, और ये इनहेंस कर देता है एजिंग के प्रोसेस को। ठीक है, Okay, ma'am. तो आपको एक हद तक ही स्ट्रेस Yes, लेना ma'am. चाहिए। ठीक है, एफर्ट अपनी करनी चाहिए जो भी काम कर रहे हो, मगर स्ट्रेस एक हद तक ही लें। जब आप उसको अपने ऊपर डोमिनेट करेंगे तो फिर वो आपकी बॉडी पे उसका नेगेटिव ही इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट Okay. प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको शो हो रही है स्लाइड या फिर गायब हो गई हैं? हो रही हैं, हो रही हैं। So the process of reverse transcription is actually is a stepwise process in which synthesis of single stranded DNA takes place. ठीक है, the single stranded DNA complementary to single stranded RNA forming a DNA RNA hybrid and hydrolysis of single stranded RNA मैं आपको स्टेप्स में बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगर आप स्लाइड 37 को देखते हैं तो आपके पास RNA टेम्पलेट है ब्लू में, ठीक है, मैसेंजर RNA टेम्पलेट जो, तो आपको पता है कि जो मोस्टली मैसेंजर RNA की पॉली ए टेल होती है, ठीक है। अब वो ए टेल जो है उसका एडवांटेज ये होता है कि आप उसके अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं, पोली टी ओलिगो डी टी प्राइमर्स, ठीक है, और वो प्राइमर अगर आपके पास आ जाता है तो फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐड करें, डीएनटीपीज ऐड करें तो क्या होगा, सीडीएनए मैसेंजर आरएनए हाइब्रिड बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आप उसकी डाइजेशन कर लेते हैं किसी एल्कली के साथ, और उसके बाद आपके पास जब डाइजेशन हो जाती है तो फिर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड में बनता है। ठीक है, और आप उसी को यूज करते हुए एक्सटेंड कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, डीएनटीपीज ऐड कर सकता है, और आप फिर लास्ट में आप न्यूक्लियस से ट्रीट कर दें तो एंड्स जो है वो ट्रिम हो जाएंगे। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड आपके पास सीडीएनए की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी। ठीक है, आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, एक तो इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यानी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कि ये आरएनए पे डिपेंड कर रहा है, आरएनए टेम्पलेट होगा तो ये डीएनए पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जो हमारे पास रेप्लिकेशन के बाकी एंजाइम्स है दे आर एक्चुअली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है ना, वो डीएनए टेम्पलेट यूज करते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये आरएनए का टेम्पलेट यूज कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें आरएनएज की एक्टिविटी है, आरएनएज एक्टिविटी मींस कि ये क्लीव कर सकता है आरएनए को। फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, और ये इसके पास 3 मेन एक्टिविटीज हैं जो ये कैरी कर सकता है, और इसकी डिस्कवरी जो थी उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई थी। एक तो ये कि आप सब लोग जो भी काम करेगा आरएनए के ऊपर, और अगर उन्होंने आरएनए से सीडीएनए की सिंथेसिस करनी है अपने एक्सपेरिमेंट्स में तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से फिर इसकी सिग्निफिकेंस है कि आप जीन को एक्सप्रेस जो हो रहा है आरएनए की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें सीडीएनए में, और फिर आप अपने कंस्ट्रक्ट्स बना सकते हैं, वेक्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, और इस रेफरेंस में इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, और एक और भी इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर कॉजिंग थ्योरी ऑफ वायरसेस जो है ना उससे भी काफ़ी इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा अपना जीनोम जो है बहुत सारे हम वायरसेस कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और वो वाले वायरस खास तौर पे जो आरएनए जीनोम के होते थे, और उन्होंने अपने कन्वर्ट करके सीडीएनए में और फिर उस जीनोम को हमारे जीनोम में इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। ठीक, आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को जब वो स्ट्रेस में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनमें आरएनए का इन्फेक्शन इंक्रीज कर जाता है। जो वायरसेस आपके जीनोम में इंटीग्रेट कर गए हैं और आप अंडर स्ट्रेस चले गए हैं किसी भी कंडीशन में, तो वो जो वायरसेस हैं वो जीनोम से निकल के अपनी कॉपीज बना के तो फिर आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उसके अलावा फिर एक और भी है कि कैंसर कॉजिंग भी उसमें जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है कि कैंसर जीन्स जो है ना वो टी वायरसेस उनको अगर शिफ्ट कर सकें जीनोम के अंदर ही, उनको एक्टिवेट कर सकें किसी ऐसे टाइम में, तो फिर भी एक हो सकती है कि जो वायरसेस हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो भी थेरीज हैं, कुछ लोगों को उसके मिले भी हैं, प्रूफ भी मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं कैंसर। अब इवन ये थेरीज नहीं है और इस पर काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए काफ़ी सारे चल रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन ना।
तो अच्छा, यहाँ पे हमारा जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला वाला टॉपिक है, ठीक है, वो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के हवाले से, जिसको मैंने डिस्कस करना है उसमें, और उसको हम इंशाल्लाह ताला जो है ना करेंगे आपके मिड टर्म के बाद ही इंशाल्लाह जो क्लास होगी, ठीक है। और उसमें फिर साथ ही हम पेपर जो हमारा रेप्लिकेशन के साथ है उसको डिस्कस करेंगे, और जो आखिरी टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन का ही उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा रेप्लिकेशन का फिर इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैम जी, ये प्रोकैरियोट्स की जो रेप्लिकेशन है ये मिट्स में इंक्लूडेड है? पार्ट 1 जो रेप्लिकेशन का है ना, यस मैम। सिर्फ वो है। मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दी है ना पार्ट 1 जिसको यस। लिखा, सिर्फ वो इंक्लूडेड है। और मैम आपका जो पेपर होगा मिट्स का वो गूगल फॉर्म पे होगा जैसे आपने मिड लिया था, या आप रिटर्न लिखवाएंगी? नहीं, गूगल फॉर्म पे होगा। गूगल फॉर्म पे होगा।